Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn English and today our topic is English grammar. So first of all we learn simple present tense. Okay. So in English 12 type of tenses. Okay. Three type of tenses: the present tense, past tense and future tense. And it is described from four type of simple present, past present continuous, present perfect, present perfect continuous, as well as past tense flow, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, as well as future simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So first today we learn simple present tense. So first of all we learn that simple present tense definition. The definition we read. Simple present tense is used to describe daily action, habitual actions, universal truth, okay, scientific rules and mathematical rules, and also to describe the action that happens after regular time. Okay, we find how do we find it simple present tense? The keywords तो daily, every means क्या है? Every week, okay? Every day, every month, every year. So every, okay? Generally, usually, rarely, often, never, sometimes, always, okay? Seldom, like these words, it's keywords of present, simple present tense. So all tenses in two sentence format. Okay, all tenses: first active voice and passive voice. So first active voice sentence simple present tense only use verb. The verb first form, okay, first form of verb. Like if subject is third person singular, we use verb as or es. We use suffix as or es if subject is third person singular. Okay, it's the one part of active voice, and इसमें जो one part है passive voice में उसका double. The two parts of passive voice. First of all, we use helping verb. Okay, the present tense helping verb is am, is, or are. What's the helping verb is am, is, are. So am, is, are. Passive voice में helping verb use करना है. First we use helping verb. Okay, तो suitable helping verb use करना है subject के साथ में. Use suitable helping verb with subject. Okay. After, and always we use third form of verb in passive voice. Okay, verb का मैं कौन सा form use करना है? Third form. The verb third form, and we call it past participle. Okay, past participle. Okay, so two type of sentence in all tenses: active voice and passive voice. Next, so first of all, not taken away, not make it. If make negative and interrogative sentence. हमें जो सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यूज क्या यूज करना है? डू और डॉज यूज करना है. क्या यूज करना है? डू और डॉज. ओके, तो फर्स्ट विल देखते हैं एग्जांपल. फर्स्ट ओके एग्जांपल, उससे पहले सेंटेंस फॉर्मेट देखते हैं. सेंटेंस फॉर्मेट क्या है?
सेंटेंस में शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से। किससे होती है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आता है, तो वर्ब यूज करना है। ओके, वर्ब। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं? एस और एस सफिक्स। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इफ प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ? थर्ड पर्सन। और लास्ट में हम निकाल सकते हैं टाइम वर्ड। ओके, टाइम वर्ड्स, या हम उसे अदर वर्ड्स भी ले सकते हैं। अदर वर्ड्स फर्स्ट हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे? आई यूज करते हैं, सब्जेक्ट आई। और वर्ब हम यूज करते हैं राइट। कौन सा वर्ब यूज करेंगे? राइट। यूज वर्ब राइट। इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर we use verb first form। infinitive bare infinitive form यूज करेंगे, bare infinitive। अगर bare infinitive राइट का टू राइट है तो क्या आएगा? राइट विदाउट टू। bare infinitive मींस विदाउट टू। आई राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कुछ भी लिख रहा है, हम क्या लिखते हैं? लेटर में लिखते हैं, तो अ लेटर। वी राइट अ लेटर। ओके, टाइम वर्ड्स यूज करना है, टाइम वर्ड्स यूज कर सकते हो, और नहीं यूज करना है नहीं यूज कर सकते हो। पर आई राइट अ लेटर आप कुछ भी करो। ओके, दूसरा लिखते आई वेक अप अर्ली। ओके, आई वेक अप अर्ली, ये भी क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट हम उसके यूज करें, सब्जेक्ट चेंज करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर ले लें। कि या कोई इसके बारे में नाम राहुल, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी नाउन वन पर्सन ओनली, और थर्ड पर्सन सिंगुलर वी सी ई, तो वी यूज वर्ब विद सफिक्स एस और ईएस। ओके, तो वर्ब क्या है? राइट। राइट हम लिखते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वर्ब के साथ क्या आएगा? एस और ईएस सफिक्स। इसके साथ क्या आएगा? एस। ये सफिक्स एस लगा, क्यों? और किसके साथ एस सफिक्स लगता है? तो एंड ऑफ वर्ब, एंड ऑफ वर्ब के क्या होना चाहिए? एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और, तो हम सफिक्स कौन सा यूज करेंगे? ईएस। ओके, तो यहां लिख सकते हो इफ subject is third person singular। okay, if third person singular the verb use as or es। तो हमें यूज करना है as or es, और एंड ऑफ वर्ब es लगता है, पता चल गया? तो हमने लिखा es सफिक्स he writes, क्या लिख रहा है? लेटर। ये क्या हुआ? सेंटेंस he writes a letter। ओके, अब हमें बेसिक वॉइस में कन्वर्ट करना होगा उसे, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रोनाउन एक्टिव वॉइस, और किसका है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अब हमें बेसिक वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करना है? फर्स्ट वी फाइंड द टेंस, ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड फाइंड द एसओवी। क्या फाइंड करना है? एसओवी। एस मींस सब्जेक्ट, वी मींस वर्ब, और O means object। okay, and object convert into subject and subject convert into object। so first we find SOV, SOV। okay, तो SVO, तो right verb है, later क्या है? object और subject, तो उसको convert करते हैं, तो क्या हो? later आ गया, subject और object convert into subject, और later is, उसके साथ हमें क्या यूज करना है? हेल्पिंग वर्ब। किसी भी हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ओके, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो सूटेबल और लेटर, और लेटर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या है? इज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? ऑलवेज थर्ड फॉर्म। जैसे में थर्ड फॉर्म आता है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न, रिटर्न। ओके, एंड सुटेबल हेल्पिंग वर्ब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म
और उसके बाद क्या लिखना है, तो यूज प्रेपोजिशन बाय, कौन सा यूज प्रेपोजिशन यूज करना है, बाय, प्रेपोजिशन यूज बाय एंड आफ्टर सब्जेक्ट ऑलरेडी टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई क्या होगा, सब्जेक्ट जो है आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो उसका पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन सा होगा, पैसिव वॉइस, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ये सेंटेंस हुआ। अब उसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव, इसमें करना है इंट्रोगेटिव, और हम एक सेंटेंस की तरह करेंगे, ही राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है, डू और डज। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू और डज। तो फर्स्ट इसके सेंटेंस फॉर्मेट लिखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेट, उसके सेंटेंस फॉर्मेट क्या होगा, तो जो सब्जेक्ट उसके आगे आएगा क्या, डू और डज, क्या है, डू और डज, हम आगे लिखते हैं कि सब्जेक्ट के सूत्र, डू और डज प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, वर्ब। यहां हमने डज यूज कर लिया, तो यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, गारंटी, विदाउट टू फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होगा। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में से आएगा, क्वेश्चन मार्क, यहां टाइम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने सेंटेंस फॉर्मेट लिखा, डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब हमें डू डज दो में से यूज करना है, डू और डज, कौन सा है यहां पे, ही। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट ही लिखा, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू और डज, तो डज यूज करेंगे, क्यों, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब के साथ ये सब है, हम क्या यूज करेंगे, डज। ओके, डज ही, और राइट, हमारे पास क्या है, राइट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक बार हमने वर्ब के साथ यूज कर लिया, एस यूज कर लिया, एस और एस, तो क्या हुआ, राइट ओनली, क्यों, तो यहां हमारे पास राइट था, राइट्स। ओके, तो हमने इसको डिस्क्राइब किया, डज प्लस राइट, ऐसे होता है। ओके, तो ये जो एस था वो निकाल लिया आपने, तो डज शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट लिख दिया। वैसे हमारे पास सेंटेंस है कौन सा, नेगेटिव, हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, तो सेंटेंस फॉर्मेट, इसके लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव के लिए डू और डज यूज करना है, नेगेटिव के लिए क्या यूज करना है, डू और डज। तो वी यूज डू और डज इन दिस सेंटेंस। तो सेंटेंस किस वर्ड से, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, डू और डज यूज करेंगे, डू और डज प्लस नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने में हम क्या यूज करते हैं, नॉट, क्या यूज करते हैं, नॉट, डू और डज के साथ क्या है, नॉट प्लस वर्ब का यहां पे क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म, व्हाई, तो यहां वर्ब के साथ हमने क्या यूज किया, वी यूज वर्ब के साथ es सफिक्स यूज कर लिया, तो यहां क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड्स के साथ। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही के साथ क्या आएगा, डज, ही डज, और उसके साथ यूज करेंगे नॉट, ही डज नॉट राइट, वो का पेरेंट फॉर्म, राइट अ लेटर। ओके, तो हमारे क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो हम देखिए पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है, वी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू है, प्लूरल यू है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी और इट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात जो हम कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट।
थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे। फर्स्ट पर्सन हमें यहाँ चेंज करना है डू और डज, चेंज करना है डू और डज। तो ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज। क्या आता है? डज। और सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डू। और सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डू। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर we use suffix s or es to we uses does. Okay. Next on the short form do not or does not का short form क्या आएगा? do not का क्या होगा? don't, और does not का क्या होगा? doesn't. Okay, यहाँ क्या आएगा? आपका short form. Okay, so today we learn simple present tense and next week we learn